Bharatiya Janata Party, even though the RJD was in rule. So in a way he's galvanized the cadre, and along with, I was speaking to some of the women folks, they have enthused confidence in Narendra Modi and Nitish Kumar's combination, and that is what. And this will go on for some time. Now the road show, this particular spot, the Prime Minister has left and is embarked on his road show further, and with heavy arrangements of paramilitary forces, the Bihar police forces, and patrolling the entire area, the vigilant crowd. And as far as you said that the Prime Minister attacked the opposition party today, yes. The opposition parties, during the course of the election, the opposition party as well as the ruling party attacks each other and on issue based, whereas Rahul Gandhi and Tejasvi Yadav has been targeting the BJP for not announcing the name of Bihar Chief Minister Nitish Kumar as the next Chief Ministerial candidate, and the BJP was forced to announce Nitish's name because it's a crucial election, and that's what they eye the vote bank of Nitish Kumar in particular. I'll ask my camera person to pan a bit. This was the statue where Prime Minister Narendra Modi garlanded a few moments back, and thereafter he's left the scene. Yes, Prakash. So the roadshow is considered the key highlight of that visit, and Prime Minister Modi is getting a very enthusiastic welcome. ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये पूरी तस्वीरें। Yes, just showing you these pictures coming in from Patna, Bihar, where the road show is continuing, viewers, and you can see that as usual, whenever Prime Minister Modi holds a road show, he gets a lot of enthusiastic welcome. A lot of people have come to get a glimpse of the Prime Minister. And earlier he was speaking, holding those two important rallies where he was speaking against on the opposition and slamming the opposition alliance during the poll campaign. Modi said that Congress was not ready to accept an RJD leader Tejasvi Yadav as a CM face ahead of polls. जनसभाओं में सब बात करते हुए कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच में महागठबंधन है, लेकिन उस महागठबंधन का आप ये देखिए कि एक कान के नीचे कनपट्टी पे बंदूक दुनाली कट्टा लगा के और उससे सीएम पद मंगवा लेता है। आज मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के ये स्टेटमेंट सबसे ज्यादा वायरल है। तो जाहिर सी बात है लोगों के बीच में संवाद बनाने का। अब वो देखिए कि बिहार में दो कट्टा चलता है, बिहार में वो कनपट्टी चलता है, उस लोक भाषा में कनपट्टी बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कनपट्टी पे दो कट्टा लगा के और इसमें जबरदस्ती उसको सीएम घोषित करवा लिया, उम्मीदवार घोषित करवा लेता है। तो ये जो जनसंवाद की जो कला प्राइम मिनिस्टर मोदी की है,
वही मैं कह रहा था कि लोगों को कभी लगा ही नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके बीच का नहीं है, उसके घर और परिवार का नहीं है। देश के चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, त्रिपुरा में चले जाइए, मेघालय चले जाइए, सिक्किम चले जाइए, आप चाहे राजस्थान चले जाइए और कश्मीर जाइए, हर जगह के लोग अगर ये महसूस करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके बीच के हैं, उसके समाज के हैं, उसके परिवार के हैं, तो ये जो एक खूबी प्राइम मिनिस्टर मोदी में है, ये सबसे बड़ा उनको एक जननायक की उपाधि में सामने में रखता है। वो ये रखता है कि किसी को ये लग नहीं रहा, कभी महसूस नहीं होता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके दूर की चीज है। जो इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े जननायक, इतने बड़े राष्ट्र के नेता और हर आदमी जो उससे करीब पाता है, यह रोड शो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक सबसे बड़ा कैंपेनिंग का आप कह सकते हैं कि आधार होता है। हर कोई एक जरूर चाहता है कभी न कभी भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को करीब से देखें, अपने करीब में पाएं, और वो इस रोड शो के माध्यम से बिल्कुल करीब पहुंचता है, उसके करीब में होने का एहसास दिलाता है। तब आप कहते हैं एक नायक की भूमिका में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले 11 सालों में जो कमाया है, देश में आज आने वाले समय में नई पीढ़ी के लोग अगर सोचेंगे तो इनको एहसास होगा कि एक नायक, एक राष्ट्र नायक, एक जननायक किस तरह से 24/7 का अपना एक रूटीन में लोगों के साथ जुड़ने, संवाद बनाने, उनके लिए सोचने, उनके लिए कुछ करने का जो जज्बा रखता है, सब उनके पीछे एक जन सैलाब निकलता है, सब उनके पीछे एक राष्ट्र नायक का उद्घोष देता है। ये चीज आपको पटना की इन सड़कों में देखते हैं। पटना लोकतंत्र के मामले में कहें, सामाजिक क्रांति के रूप में कहें, पटना और बिहार हमेशा आप देश को कुछ न कुछ मैसेज दिया है। आज पटना का यह रोड शो डेफिनेटली रूप में आप कह सकते हैं कि देश को एक बड़ा संदेश दे रहा है, आने वाले चुनाव को दे रहा है, गठबंधन को लेकर भी दे रहा है। बिल्कुल। आप विनोद जी आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश राज हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। राजेश, साफ तौर पर यहाँ पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, बहुत बड़ी बानगी पेश करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में पटना में जो स्थितियाँ हैं और आप ग्राउंड जीरो पर हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या लोगों की प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है जब प्रधानमंत्री को अपने बीच पा रहे हैं? राजेश राजेश आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ आवाज आपकी। जी 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 राजेश, बताएं कि क्या प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं, किस तरह की अनुभूति वहां पर नजर आ रही है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो दिनकर गोलंबर राजेंद्र नगर से धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, कदम कुआं होता हुआ, हसुआ मार्केट, गांधी मैदान की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। सड़क के दोनों किनारे बड़ी तादाद में लोग जो है वो खड़े हैं, प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है कि बिहार के लिए जो उन्होंने डेवलपमेंट के काम अब तक किए हैं, उन कामों के आधार पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान अपनी बातें रख रहे हैं और कहीं ना कहीं आत्मसात करने की कोशिश भी की कर रही है। चारों तरफ सड़कों का जाल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिछा है। एयरपोर्ट बने हैं, दरभंगा एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट, जीर्णोद्धार किया गया है। बड़ी तादाद में अगर हम कहें तो विकास कार्यों की एक लंबी फहरिस्त है और शायद यही वजह है कि लगभग 2 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। दोनों तरफ सड़कों पर जो लोग खड़े हैं, पीएम मोदी का जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं और एक हम कह सकते हैं कि लोगों के चेहरे पर उनको देखने के लिए जो खुशी, चमक जो देखी जा रही है वो बड़ी काबिल तारीफ है। और मैंने एक चीज और देखा गौरव, कि हाथों में आरती की थाली लेकर छतों पर लोग, महिलाएं खड़ी हैं, आरती की थाली उनके हाथों में है। लोग खिड़की से, बालकनी से देख रहे हैं पीएम मोदी को। उनके चेहरे की जो मुखाकृति है, इससे ये साफ है कि पीएम की लोकप्रियता जो है ये बिहार में कम नहीं है। आपको यह शोर शराबा दिखाई पड़ रहा होगा, मैं पीएम के कारपेट के ठीक आगे हूँ और जो उनका काफिला आगे बढ़ रहा है तो लोग हैं वो एक झलक पाने के लिए बेकार नजर आ रहे हैं। और बिहार एक कहा जाता है कि पॉलिटिकली बहुत ही कॉन्शस स्टेट है, जहाँ पर कि सामान्य जो लोग हैं, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े जो लोग हैं, वह भी राजनीति की बारीकियों को समझते हैं। और शायद यही कहा जाता है कि चाय की दुकानों पर भी जो
गपशप होती है बिहार में, उससे एक बड़ा जनमत का निर्माण होता है। लोग उन गॉसिप में जो है वो बहुत कुछ तलाशते हैं। तो प्रधानमंत्री चाय की दुकान लेकर चौक चौराहे खेत खलिहानों में भी प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा होती है, उनका जिक्र होता है कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से भारत को चमका और किस तरीके से बिहार उन्होंने चमकाया। बिहार के लिए जो व्यापक काम किए हैं उसका कहीं न कहीं एक बड़ा दिखाई पड़ रहा है। बिहार की जनता पर मानव करे कह सकते हैं एक बड़ा होना चाहिए सड़क तोड़ा है। बिहार को लोग ठीक है, ठीक है, ठीक है राजेश, वापस आऊंगा आपके पास। और विनोद जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, साफ तौर पर मोदी मैजिक एक बार फिर से नजर आ रहा है, और ये जादू ही है जो साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है, जहां पर लोग पलक पावले अपने बिछाए किस तरह से प्रधानमंत्री का यहाँ पर जोरदार स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से बिहार की जो ये सरजमी है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना और उसके बाद से जो अभी चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, आप क्या देखते हैं इसके बाद कितना बड़ा बदलाव परिवर्तन वहां पर आता हुआ नजर आएगा? विनोद जी, देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये लोकतंत्र का जो उत्सव है बिहार में वो कैसे सांस्कृतिक उत्सव के रूप में ये बदलता है। ये नजारा प्राइम मिनिस्टर मोदी के रोड शो में देखने के लिए आप कुछ दृश्यों को देखिए। अभी बिहार में सामा चकेवा का एक लोक उत्सव चल रहा है, लोक फेस्टिवल है, जहां बहन जो है अपने भाइयों के लिए ये सामा चकेवा का उत्सव करती है। और ये 4-5 दिन का ये उत्सव में 4-5 पूर्णिमा के दिन आने के बाद जो है उनका उत्सव वो पूरा होता है। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ इस रोड शो में आप देखेंगे कई महिलाएं जो छोटे छोटे मूर्तियों को लेके खड़ी हुई है। आप अगर अपने इसमें देखेंगे कि अभी दृश्य में कई जगह आपको देखेंगे वो सामा चकेवा का वो मूर्ति है, वो छोटे छोटे हाथ में लिए हुए और दीप लिए हुए जो महिलाएं हैं वो आपके हाथ में भाई के सम्मान में उस सामा चकेवा को लिए उस मूर्ति को लेके वो खड़ी हुई है। तो ये जो सांकेतिक एक बहन का उद्गार है बिहार के महिलाएं को, आप ये देखिए कि सामा चकेवा के उसके एक निजी अपने घरेलू फेस्टिवल होता है। लगभग बिहार के हर क्षेत्रों में बहन जो है अपने भाइयों के लिए फेस्टिवल करती है, और इस रोड शो में बहन निकल के उस सामा चकेवा के उस मूर्ति को लेके, वो छोटे छोटे खिलौने टाइप के बने होते हैं, उसको लेके वो सामने में दीप लेके खड़ी हुई है और सामने में प्राइम मिनिस्टर मोदी है। तो एक भाई के उस सुर में गीत गाते हुए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अब तक बहनों के लिए, खास करके जो आप देखें महिलाओं के एक बड़ी तादाद आधी आबादी की है, और अगर वो नरेंद्र मोदी के लिए उसके मन में जो एक इतना सम्मान है एक बड़े भाई को लेके, और उसकी परिलक्षित आपको इस रोड शो में दिखाई देता है, तब आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इतने वर्षों से अपने सत्ता में और इतने वर्षों के समाज सेवा में उसने क्या कमाया है। जो ये कनेक्शन जो दिखाता है, आज इस कनेक्शन को जोड़ने के लिए राहुल गांधी को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि वो बेगूसराय में किसी तालाब में वो कूद रहे हैं, जो हम मछुआरों के साथ में खड़े होकर उनके साथ दिखने की कोशिश करते हैं। कभी वो किसान के साथ में खेत में खलिहान में खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये फोटो ऑफ करने के बजाय अगर आप इस रोड शो में देखेंगे कि वो महिलाएं जो लाइन में खड़ी हुई है, मैं कह सकता हूं कि वो घंटों से खड़ी होगी कि जब प्राइम मिनिस्टर का काफिला उनके करीब पहुंचेगा, और उसमें सब तक वो दीप लेके सहेजते हुए उस सामा चकेवा की मूर्ति को लेके खड़ी हुई है। तो वो एक भाई के रूप में प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये कम से कम उद्गार और अपनी वो प्रसन्नता दिखाना चाहती है। ये बात पूरे भारत में भी लागू होता है, सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश की महिलाएं आज अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेके जिस तरह से अपनी एक मुखर आवाज में सामने आती है, अपने घर परिवारों में भी अपनी राय व्यक्त करती है, ये इस दौर की एक सबसे बड़े सोशल चेंज है। जब आप सोशल फैक्टर की बात करते हैं तब आपको लगता है कि महिलाओं को मिला हुआ अधिकार, ये देखिए ये सारी चीजें जो आपको दिख रहा है, ये आरती का वो दृश्य दिख रहा है जो इस समय में गंगा जी के किनारे में कहीं आरती का वो दृश्य होगा, वो भी आपको ये सड़क पे आपको दिख रहा है। तो ये पूरा नजारा जो पटना के बिहार के एक सांस्कृतिक वैभव का है, वो इस रोड शो में प्राइम मिनिस्टर के एक काफिले के साथ में आपको अलग अलग जगह पे दिखाई दे रहा है।
तो आप कह सकते हैं कि बिहार के सांस्कृतिक समृद्धि की झांकी जब आप इस रोड शो में देखते हैं और उसमें लोगों की भागीदारी देखते हैं, तो यही सामाजिक भागीदारी, यही सहकारी समाज का जो ये आदर्श है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इतने वर्षों तक शासन में, सत्ता में, समाज सेवा में जोड़ के रखा हुआ है, इसका मूल आधार आप कह सकते हैं कि आपको ये सारी चीजें रोड शो में दिखता है। और ये रोड शो शायद और राजनेताओं के लिए एक कह सकते हैं कि एक मॉडल हो सकता है। जनता से आप जुड़ेंगे तो जनता का जुड़ाव आपके लिए घंटों ऐसे ही सड़क पे खड़ा होकर आपके लिए सैलाब बना देगा, जो पटना में नजारा हमारे सामने में है। निश्चित तौर पर विनोद जी, क्योंकि यहाँ पर जब हम देखा जा रहा है, क्योंकि ये सांस्कृतिक पहलुओं की जब हम बात करते हैं, वहाँ पर भी हमने देखा है कि भारत की जो सांस्कृतिक पहल है वहाँ पर भी ये साफ तौर पर चरितार्थ इसको करती है। इस पूरे रोड शो में अलग अलग तरीके से इसकी झलकियाँ नजर आ रही है विनोद जी। ऐसे में अगर हम इससे इतर अगर हम बिहार चुनाव को लेकर जब बात करते हैं, आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो आपकी बार सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं? और इसके अलावा अगर हम बात करें तो लोगों के दिलों में जो जगह बनाने का काम है वो किस तरह से, किस प्रकार से अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? चीज को देख रहा था या पंडित होंगे वो इस चीज को देख रहे होंगे कि आज एनडीए के नेतृत्व में अगर आप देखिए कि सबसे बड़े स्टार प्रचारक में प्राइम मिनिस्टर मोदी और नीतीश कुमार है। 2-3 दिन से बिहार में जबरदस्त बारिश हो रही है। अब आप देखिए, जो युवा नेता कहलाने का दम भरने वाले तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, वो किसी रोड अपने प्रोग्राम में जो पहले से फिक्स प्रोग्राम है उसमें भी नहीं जा पाए हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि फोन से लोगों को एड्रेस कर रही थी कि मौसम खराब है, इसलिए तेजस्वी यादव के दर्जनों प्रोग्राम पिछले 3 दिन में कैंसिल हुए हैं। लेकिन 75 साल का नीतीश कुमार उस बारिश में भी सड़क पे यातायात अपने रोड से निकल के और अपने तय प्रोग्राम में पहुंच रहा है। तो ये डिटर्मिनेशन बताता है। बिहार के लोग इस प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब देखते हैं कि वो उसका कोई शेड्यूल फेल नहीं हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के हर रैली में उनको आना है तो वो पहुंचते हैं, ये कमिटमेंट का लेवल होता है। बिहार में इस 3 दिन में देखा है कि 3 दिन में पिछले कई बड़े नेताओं का, युवा नेताओं का रैलियां कैंसिल हुई है, जनसभाएं कैंसिल हुई है, पब्लिक प्रोग्राम कैंसिल हुई है, लेकिन एक भी प्रोग्राम नीतीश कुमार का कैंसिल नहीं हुआ, एक भी प्रोग्राम पीएम मोदी का कैंसिल नहीं हुआ। तो आप अगर कोई कहता है कि 20 साल से नीतीश कुमार बने हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर लगातार देश में इतने साल तक प्राइम मिनिस्टर होने में भी अभी तक लगातार बने हुए हैं, तो उसके पीछे यही संकल्प है। मैं अभी वही आपको बता रहा था, जो रोड शो में महिलाएं जिस तरह से समाज सेवा को लेके खड़ी है, तो आप वही देखिए कि मैं यही चीज बार बार बता रहा हूँ कि ये सामाजिक, जब आप कहते हैं कि सोशल चेंज की बात करते हैं, ये किताबी बात नहीं है। सोशल चेंज जब आप उसको इम्पावर करते हैं, जो विमेन इम्पावर की बात आप अगर आप कहेंगे, तो बिहार में आपको विमेन इम्पावरमेंट के 100% सक्सेस दिखता है। आज अगर टीका दीदी हो या अपने सारी स्कीम को लेके महिलाएं वहां अपने को एक स्वरोजगार से जोड़ी है, ये एक अद्भुत है। हमारे यहाँ से जाने वाले पत्रकार या जो बुद्धिजीवी हैं वो इस चीज को समझ पाने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं कि बिहार का पर कैपिटा इनकम को आगे बढ़ाने में, बिहार को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में महिलाएं की सबसे बड़ी भूमिका है। और ये भूमिका इसलिए हुआ है कि इसको इंश्योर करने में प्राइम मिनिस्टर मोदी और नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है। आज अगर आप बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप करते हैं, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेके आप अलग अलग तरह के नैरेटिव देते हैं लोग, लेकिन आज अगर बिहार में लड़कियां स्कूल की शिक्षिका कहीं से कहीं बस से जा के 25-25 किलोमीटर की जाके नौकरी कर रही है, स्कूल में टीचर हैं और वो अपने घर शाम में लौट रही है, ये सारे चीज लोग देख रहे हैं, जो बिहार के लिए एक अजूबा सी चीज लोगों को लगता है कि 15 साल पहले क्या बिहार की सामाजिक स्थिति ऐसी थी। नैरेटिव बनाने के लिए बिहार के परसेप्शन में चाहे लोग जिस तरह की बात करें, लेकिन ये रोड शो आप जब कभी आते हैं, समाज के हर तबके के लोग इस रोड में आजू बाजू में खड़े हैं और प्राइम मिनिस्टर का स्वागत कर रहे हैं, तो आप मान सकते हैं कि जो डेवलपमेंट को लेके एनडीए के 20 साल के शासन में
निश्चित तौर पर ये डेवलपमेंट और ये जो तमाम बातें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। विनोद जी आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश राज का भी रुख कर लेते हैं। राजेश, साफ तौर पर देखें तो जन सैलाब जो है वो धीरे धीरे करके और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग छतों पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिर्फ एक छवि पाने के लिए। बहुत कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है और साफ तौर पर क्या लगता है राजेश आपको कि अब की बार ये जो पूरा रोड शो पटना में हो रहा है कितना बड़ा प्रभाव ये पूरे चुनाव पर डालता हुआ नजर आएगा? राजेश, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो हथुआ मार्केट से होते हुए धीरे धीरे पटना के गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि यह जो अद्भुत मनोरम विहंगम दृश्य जो है वो पटना की सड़कों पर आप देख सकते हैं। जिस तरीके से सड़क के दोनों किनारे जो शारदा सिन्हा के गीत बजाए जा रहे हैं, छठ के गीत बजाए जा रहे हैं, जो यहाँ की परंपरा है, सांस्कृतिक जो रीति रिवाज है, उसको कहीं न कहीं फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। और एक बड़ा ही हम कह सकते हैं एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य है और इसको कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की रैलियों में बखूबी हम देखते हैं कि जब लोग यहाँ पर आते हैं एक अभिनंदन करने का जो कार्यक्रम इनका रहता है उसमें सड़क के दोनों किनारे लोग खड़े रहते हैं और एक व्यापक हम कह सकते हैं कि जन समर्थन पटना की सड़कों पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री का काफिला स्नेह धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जहां पर इसी गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने जेपी आंदोलन में हुंकार भरी थी। राष्ट्रकवि दिनकर की अनेक कविताओं का गवा रहा है पटना का गांधी मैदान। वहीं पर आकर पीएम मोदी का काफिला खत्म होगा। लगभग 2 किलोमीटर लंबा रोड शो जिसमें सड़क के दोनों किनारे हम कह सकते हैं कि एक भव्य जो है एक प्रस्तुति, एक भव्य रोमांच जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर राजेश ये जो तस्वीरें हैं बहुत कुछ बयां कर रही हैं और प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए लोग यहाँ पर किस तरह से उपस्थित हैं और जोरदार स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये और ज़्यादा भव्य होता हुआ नजर आ रहा है। सांस्कृतिक पहलुओं की जब बात करते हैं तो भी यहाँ पर हमने देखा है कि किस तरह से आरतियाँ उतारी जा रही हैं। अलग अलग रीति रिवाज जो हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है और इसके अलावा भी जो भीड़ है वो भी प्रधानमंत्री के इस काफिले के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा रोड शो है वो अपने आप में तमाम कहानियां समेटे हुए हैं और ये कहानियां जो विगत 11 वर्षों में जिसकी शुरुआत हुई और उसके बाद से लेकर अभी तक लगातार हम देख रहे हैं कि जो उपलब्धियां हैं वो सरकार ने हासिल की और उसके बाद लोगों से ये जो जुड़ाव है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। विनोद जी, लगातार हम देख रहे हैं काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसी के साथ साथ ये जो भव्यता है वो और ज़्यादा दिव्य और भव्य होती हुई नजर आ रही है। आपकी बार के चुनाव में अगर हम देखें तो तमाम ऐसे मुद्दे जो प्रभावी हैं जो आपने भी गिनाए और उसके अलावा भी आपने तमाम रणनीतिक पहलुओं की बात की, लेकिन अब की बार जो स्थितियां हैं वो आपको क्या लग रही है? क्योंकि ये रोड शो जो है उससे साफ तौर पर जो जुड़ाव है वो और ज़्यादा मजबूत और सशक्त होता हुआ नजर आएगा। क्या लगता है आपको कि आने वाली राह अब और कैसी होने वाली है और कितनी मजबूत अब की बार भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव में उभर कर नजर आएगी बिहार की दृष्टि से देखें तो? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, देखने वाली चीज इस रोड शो में ये है भरोसे का जी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है एक विश्वास का, जिसको आप जन विश्वास कहते हैं। जब आपके साथ में लोगों का विश्वास और भरोसा होता है तब आपको यह बहुत सारे वादे गिनाने का कि चांद तोड़ के दे देंगे, सितारे दे देंगे, सूरज दे देंगे, आसमान दे देंगे, लेकिन उसमें जो क्रेडिबिलिटी है, वो भरोसे की जो सबसे एक मजबूत पक्ष है, वो मजबूत पक्ष आपके पास नहीं होता है तो आपके सारे ये वादे और ये वादे हवाई हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी सभाओं में कोई ऐसे बड़े वादे की बात नहीं कर रहे हैं। बिहार में इलेक्शन अनाउंसमेंट से पहले और इलेक्शन के दौरान में जब प्राइम मिनिस्टर के मोदी की अभी तक पिछले 2-3 महीने में कम से कम दर्जन से ज्यादा रैलियां हुई है
और कभी उन्होंने नहीं कहा है कि हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे। लोगों को जो मिला है वो लोगों के सामने में है, लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। तो ये बात लोग जानते हैं कि जब वो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये मोदी है तो मुमकिन है, ये ऑपरेशन सिंदूर भी मुमकिन है, तो दरभंगा और पूर्णिया में एयरपोर्ट भी मुमकिन है। अब आप दरभंगा में के काम करने वाले वहाँ के आसपास के 25 से 30 किलोमीटर के लोग, और अब पूर्णिया में आप एक एयरपोर्ट बनने से वहाँ पश्चिम बंगाल से लेके बॉर्डर के उस पार नेपाल तक के लोग, अगर उनकी कनेक्टिविटी भारत में कहीं भी घंटे 2 घंटे हो गई है तो ये इसलिए हुई है कि मोदी है तो मुमकिन है। कि अगर पटना के गली से लेके और गांव के गली तक में सड़क के मामले में कोई अंतर नहीं है, अगर बिहार में NH का, नेशनल हाईवे का जाल बिछा हुआ है, अगर बिहार में ट्रेनों की संख्या सबसे ज्यादा है, बिहार में इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेनों का हुआ है, 24 घंटे अगर बिजली का इंश्योर अगर पूरे कहीं देश में, कहीं गुजरात में है तो आज बिहार में भी है। तो अगर इतना चीज लोगों को मिला हुआ है बॉस, तो आपको किसी और वादे की, चांद तारे की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे। कुछ दे देंगे में आपका वो भरोसा नहीं टिकता है, आपका वो विश्वास नहीं टिकता है। तो ये क्रेडिबिलिटी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने समाज सेवा के कम से कम 45 सालों में कमाया है, वो यही कमाया है कि उसे प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखने के लिए घंटों से अपने उपाड़ी में वहां पे खड़े हुए लोग इंतजार कर रहे हैं। ये अगर देश का नेतृत्व कमाया है तो आप मान सकते हैं कि लोगों का जो जन विश्वास जिसको आप बोलते हैं कि ये जन विश्वास कमाया है, ये जन विश्वास समाज सेवा से आता है, ऑनेस्टी से आती है, इंटीग्रिटी से आती है। ये चीज अगर नरेंद्र मोदी ने कमाया है तो आप ये कह सकते हैं कि जनता का यह मिला हुआ आशीर्वाद ही उन्हें तीसरे टर्म में प्राइम मिनिस्टर मोदी बनाया है। अगर आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को भी इतना लंबा शासन का जो जनता ने अनुभव दिया है वो ये इसलिए दिया है कि उसके प्रति लोगों का विश्वास है। आप किसी भी पीढ़ी के चले जाएं बिहार में, बुजुर्ग से लेके और नई पीढ़ी तक का, क्या ये विश्वास